Hello everyone, you are watching or learn with Sia the tutorial. In the previous lesson, we have already discussed verb and its types. And also we discussed definition of adverb and examples in the lesson number 5. Today now in this video we are going to discuss about kinds of adverb. Lesson number 12 पे discuss करेंगे यानी kinds of adverb पर. How many kinds of adverb? There are 6 kinds of adverb. First है adverb of degree, second है adverb of frequency, third है adverb of time and fourth है adverb of manner, fifth है adverb of place, sixth है adverb of conjunctive. So discuss करते हैं adverb of degree पर. Help to express the intensity of verb or extent to which something happens. मदद देता है साबित करने में कि वर्ब की शिद्दत क्या है और काम किस हद तक किया जा रहा है. So it's mean कि वो adverb of degree कहलाएगा. For examples, he is not terribly interested in politics. So यहाँ पर terribly जो यूज़ हुआ है ये adverb of degree को जाहिर करेगा. इसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल है ब्रिजपोर्ट वॉज अ फैसिनेटिंग सिटी. सो यहाँ पर ब्रिज जो यूज़ हुआ है ये adverb of degree होगा. इसी तरीके से थर्ड एग्जाम्पल है द शो वॉज इनॉर्मसली पॉपुलर. सो यहाँ पर इनॉर्मसली जो सेंटेंस में यूज़ हो रहा है ये भी adverb of degree होगा. इसी तरीके से फोर्थ एग्जाम्पल है शी कम्स हेयर प्रैक्टिकली एवरी डे. इस सेंटेंस में प्रैक्टिकली जो है ये भी adverb of degree को रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल है he barely passed the matric. सो यहाँ पर barely जो यूज़ हो रहा है ये भी adverb of degree को शो करेगा. सेकंड है adverb of frequency. Adverb of frequency helps us know how often something happens. मदद करता है ये जानने में कि कोई चीज़ कितनी बार होती है. फॉर एग्जाम्पल्स I occasionally eat junk food. सो यहाँ पर occasionally जो यूज़ हुआ है ये adverb of frequency होगा. इसी तरीके से इसकी सेकंड एग्जाम्पल है he seldom read the newspaper. सो यहाँ पर seldom जो यूज़ हुआ है ये adverb of frequency होगा. Our family goes to Canada once a year. सो यहाँ पर once a year जो यूज़ हो रहा है ये भी adverb of frequency होगा. इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है she often use her cell phone a day. सो यहाँ पर often जो यूज़ हो रहा है ये भी adverb of frequency होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल है we mostly talks about cars and technology. सो यहाँ पर mostly जो यूज़ हो रहा है ये भी adverb of frequency को जाहिर करेगा. थर्ड है adverb of time. It tell us when an action happened besides how long, how often. ये जानने में मदद देता है कि काम किस वक्त, कितने लंबे अरसे और कब तक हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल्स I received your letter yesterday. सो यहाँ पर yesterday जो यूज़ हुआ है ये adverb of time होगा. इसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल है soon we left the city. soon जो यहाँ पर यूज़ हुआ है ये भी adverb of time होगा. थर्ड एग्जाम्पल है he always take a pie later. यहाँ पर later जो यूज़ हुआ है ये भी adverb of time को रिप्रेजेंट करेगा. फोर्थ एग्जाम्पल है she just left home. सो यहाँ पर left जो यूज़ हुआ है ये भी adverb of time होगा. फिफ्थ एग्जाम्पल है he always take breakfast at 1 o'clock. सो यहाँ पर always जो यूज़ हुआ है ये भी adverb of time होगा. फोर्थ है adverb of manner. Give us more information about how over is done. It is usually placed before and after the object. हमें मालूमात फ्राहम करता है कि काम कब हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट से पहले या बाद में इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल्स she eat my lunch greedily. सो यहाँ पर greedily जो यूज़ हुआ है ये adverb of manner है. सेकंड एग्जाम्पल है he sat waiting patiently for his turn. सो यहाँ पर patiently जो यूज़ हुआ है ये भी adverb of manner होगा. थर्ड एग्जाम्पल है द डॉग रिएक्ट एट स्ट्रेंजर एग्रेसिवली. सो यहाँ पर aggressively जो यूज़ हुआ है ये भी adverb of manner होगा. नेक्स्ट है adverb of place. इट डिस्क्राइब्स where something happens. ये बयान करता है कि काम कहाँ हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल्स वी फेस अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ. सो यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स जो यूज़ हुआ है ये adverb of place होगा. सेकेंड एग्जाम्पल है रिसेंटली आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन. सो यहाँ पर रिसेंटली जो है ये होगा adverb of place. थर्ड एग्जाम्पल है वी डिपॉजिट आवर चेक नियर बी बैंक. सो यहाँ पर नियर बी जो है ये होगा adverb of place. फोर्थ एग्जाम्पल है ही रैन डाउन हिल्स. सो यहाँ पर डाउन हिल्स जो होगा ये भी adverb of place होगा. नेक्स्ट है कंजक्टिव adverb. वर्ड यूज टू कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इनटू अ सिंगल सेंटेंसेस.
ये मिलाता है दो इंडिपेंडेंट मुहावरों को एक जुमले में। सो इट्स मीन कि कंजक्टिव एडवर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, शी स्पीक्स फ्रेंच एंड आल्सो स्पीक्स इंग्लिश। सो यहाँ पर आल्सो जो है ये कंजक्टिव एडवर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज सर्टेनली अ वेरी स्मार्ट मैन, यू कैन ट्रस्ट हिम। सो यहाँ पर सर्टेनली जो है ये होगा कंजक्टिव एडवर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही वॉज लेट एंड आई सिमिलरली वॉज डिलेड। सो यहाँ पर सिमिलरली जो यूज हुआ है ये होगा कंजक्टिव एडवर्ब। सो गाइस, ये थी वीडियो लेसन नंबर 12 की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।